Hello students, we shall discuss in this chapter trajectories. Also we observe that differential equation of first order and first degree represent a family of curves. So family of curves, suppose that f x y c is equal to 0, a fixed value, a fixed real value of c in xy plane, xy plane, where c is represent many infinite members of family, and collection of these family are called one parametric family of curve. Suppose f x y c is equal to x plus y plus z. This represent a family of curve of a straight line, and another f x y c is equal to x square plus y square minus c square represent a second degree quadratic equation, that is as a parabola. So differential equation of this family of curve, फर्स्ट और ये सेकेंड इलस्ट्रेशन है. तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इट with respect to x, we get 1 plus dy by dx is equal to 0, and 2x plus 2 dy by dx is equal to 0. So dy by dx is equal to minus x upon y. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए पैराबोला. तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाल सकते हैं. हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर उसका dy बाई dx कर देते हैं, वेयर c इज ए parameter or any constant. As equation of parabola, equation of parabola y is equal to cx square. Now differentiate it with respect to x. Differentiate it with respect to x, we get dy by dx is equal to 2cx.
equation number first and second. Now eliminate C. Eliminate C from 1 and 2. We get on dividing 2 by 1, we get dy by dx upon y is equal to 2cx upon cx square. So c cancel. So dy by dx is equal to 1 upon x square, 1 upon x into y. Dy by dx is equal to 2. So dy by dx is equal to 2y upon x. This is a differential equation of parabola. तो इस प्रकार से दिए गए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्वों को हम x के सापेक्ष में डिफरेंशियल करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। Geometrical interpretation of differential equation. Interpretation of differential equation. Now let's draw a graph in xy plane. Let us suppose that family of curve f x y dy y dx is equal to 0. It represents a family of curve. In this case, we can also write equation number first, and we also write f x y is equal to 0. Now, in other cases, some particular cases, we can write f x y is equal to 0, but in not always we can write f x y is equal to 0. So x y पॉइंट हमारे एक्स वाई प्लेन पर, सपोज लेट वी टेक ए पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट पी नॉट ए नॉट बी नॉट। मान लिया हमने एक पी नॉट पॉइंट लिया यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए नॉट है और y इज इक्वल टू बी नॉट है। सो ग्रेडियंट ऑफ दिस पॉइंट ग्रेडियंट
this point of dy by dxo at a naught p naught, we also find out. After short distance we take p1 where point a1 b1, another point we take p2 a2 b2, p0 p1 p2 p3। सो इस प्रकार से p0 p1 p2 p3 and so on. So also we find out the gradient of dy by dx of a1 b1 dy by dx of a2 b2 and so on. Let us suppose that gradient of dy by dx at p naught is equal to m naught. This is equal to m1. This is equal to m2 and so on. This is represent a differential equation value x y dy by dx is equal to 0. हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पे जो हमने शॉर्ट डिस्टेंस मानी है पी 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 नॉट p1 p1 p2 p2 p3 एंड सो ऑन, इनकी एक्स वाई पॉइंट और dy बाई dx जो हमारे निकले ग्रेडियंट के m0 m1 m2, दिस इन द सेम प्लेन। So we can say the point P1, P0, P1, P2 dash which represents a curve. The value of x, y and the value of gradient dy by dx satisfy the conditions f x y dy by dx a डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रॉपर्टी को 1 एंड 2 इक्वेशन जो हमने लिए हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये एक कर्व जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। Hence the family of curve fxy dy by dx, in this case the value of xy dy by dx satisfies the property of differential equation which is represent a family of curve। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें जो एक्स वाई और dy बाई dx की जो वैल्यू हैं वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट जो है इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या उसको हम रिप्रेजेंट जो है कर सकते हैं। इसका मतलब एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। अगर इसी इन केस तो हम सेकेंड ऑर्डर का ले लें तो सेकेंड ऑर्डर में c की वैल्यू 2 हमें प्राप्त होगी। तो जब c की वैल्यू हमारी 2 होगी तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन जाएगा, यानी वो भी एक फैमिली ऑफ कर्व को ही जो है रिप्रेजेंट जो है करेगा। अब हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल
ट्रेजेक्टोरी हमारी क्या है, ये तो फैमिली ऑफ कर्व था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इन एक्स वाई प्लेन। अब देखिए ट्रेजेक्टोरीज क्या है। ट्रेजेक्टोरी क्या है कि एक कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, a curve which cuts every member of given family of curve according to some given law। अगर किसी दिए गए नियम के आधार पर कोई कर्व किसी फैमिली ऑफ कर्व के प्रत्येक मेंबर को अगर काटता है, कट कर रहा है, तो ऐसे अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टोरी। एक ऐसा कर्व जो किसी फैमिली ऑफ कर्व के प्रत्येक मेंबर को काटता है किसी नियम के आधार पर अकॉर्डिंग टू सम लॉ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टोरी। उसे हम उस गिवन कर्व की ट्रेजेक्टोरी कहते हैं ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। फिर होती है हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी। क्या होता है, ये तो ट्रेजेक्टोरी हो गई कि कोई भी कर्व किसी गिवन फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ कर्व को किसी नियम के आधार पर काटे उसे हम ट्रेजेक्टोरी कहते हैं। लेकिन अगर वो कर्व हमारा राइट एंगल पर काटता है, इफ कर्व कट्स एवरी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एट ए राइट एंगल, अगर वो राइट एंगल से काटता है यानी 90 डिग्री के कोण से काटता है, तो ऐसी ट्रेजेक्टोरी जो होती हैं वो हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी कहलाती हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी के इफ ए कर्व कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, अगर कोई भी हमारा कर्व किसी दूसरे फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ कर्व के प्रत्येक मेंबर को राइट एंगल पर काटता है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरीज। ट्रेजेक्टोरी क्या है, जब कोई कर्व किसी फैमिली ऑफ कर्व के प्रत्येक मेंबर को काट रहा है किसी गिवन लॉ के आधार पर, तो उसे हम ट्रेजेक्टोरी कहते हैं। अगर यही ट्रेजेक्टोरी हमारी 90 डिग्री पर काटती है तो ऐसी ट्रेजेक्टोरी को हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी कहेंगे। कुछ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी होती हैं। तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी एज दे कंसिस्ट ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरीज ऑफ ईच अदर, अगर वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरीज ईच अदर हैं, आपस में ही हैं, तो उन्हें हम म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी कहते हैं। जैसे एज ए फ्रॉम एंड ऑर्थोगोनल, ऐसे से हम ऑर्थोगोनल नेट भी कहते हैं, या वो फॉर्म करता है एक ऑर्थोगोनल नेट। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी जो ईच अदर होती है या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी जो होती है उसे हम ऑर्थोगोनल नेट भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर इको पोटेंशियल जो होता है और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो हैं वो ईच अदर म्यूचुअली होती हैं। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरीज हैं, या इन्हें हम ऑर्थोगोनल नेट भी जो है कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इको पोटेंशियल को। अब हम देखेंगे कि ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी हम कैसे निकालेंगे। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट में है। एक तो जब कोऑर्डिनेट हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है यानी एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट होता है, टू डायमेंशन में एक्स एंड वाई हो, और एक कोऑर्डिनेट होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट में हम फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब होता है तब हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, लेट अस सपोज दैट एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है।
सपोज इसमें हमने सपोज किया कि कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर द करंट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। ये इसके करंट कोऑर्डिनेट हमने माने ऑफ एनी पॉइंट ऑन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी। इस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी पर हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोई पॉइंट ले लिए। when where at any point a member of curve cuts the orthogonal trajectory, so we must have इस पॉइंट पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी हमारी काट रही है, तो वो पॉइंट हमने सपोज किया कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स के है और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। इसलिए dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1/dy बाई डी एक्स। ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू x y एंड dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू अगर हम इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाता है f(x) कैपिटल वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त होता है यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी का। समझ में आ गया? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी का डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे प्राप्त करते हैं कि दिए गए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व का हम डिफरेंशियल कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर dy बाई डी एक्स के स्थान पर चेंज कर देते माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स वाई और dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम रख देते हैं वहाँ पर गिवन इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी का। वर्किंग रूल इसका ये है, 3 स्टेप में वर्किंग रूल है। पहला वर्किंग रूल है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम dy बाई डी एक्स करते हैं, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम dy बाई दिए गए जो कर्व होगा उसका हम dy बाई डी एक्स करेंगे। दूसरा स्टेप है पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, और थर्ड रूल है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो वर्किंग रूल क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी का? सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम dy बाई डी एक्स के स्थान पर पुट करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, फिर हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जो जनरल सॉल्यूशन होगा वही हमारे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब हम इसको एक क्वेश्चन की जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरीज ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व गिवन बाय दिया हुआ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स। इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी ज्ञात कर रही है। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी निकालने के लिए तो अभी हमने सबसे पहले बताया था कि पहले dy बाई डी एक्स करते हैं, ये dy बाई डी एक्स दिया हुआ तो इस पर हम ओनली सिर्फ चेंज करेंगे dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स, वी चेंज रिप्लेस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू रूट ए अपॉन एक्स, या हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1/2
2। इसलिए dy इक्वल टू पलट जाएगा, ये जाएगा x की पावर 1/2 अपान a की पावर 1/2 dx माइनस। अब हम इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट इट with respect to x, so we get integrate dy equal minus integrate x की पावर 1/2 a की पावर 1/2 dx। तो y प्लस c इक्वल माइनस x की पावर 3/2 अपान 3/2 और a की पावर 1/2। इसको हम इधर ले आवें, ये जाएगा y प्लस c और 3/2 इक्वल टू a की पावर 1/2 इक्वल टू x की पावर 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये जगह 3/2 और y प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू x की घात 3। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ, यही हमारा ट्रेजेक्टोरी होगी। तो ट्रेजेक्टोरी जो है कैसे हमने निकाला कि dy बाई dx को हमने रिप्लेस किया कैसे, माइनस dx अपान dy से वैल्यू हमने इस पे पुट की, इसका हमने रूट ले लिया, इक्वेशन बन गई dy इक्वल टू माइनस x की पावर 1/2 अपान a की पावर 1/2 dx। इसे हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, इंटीग्रेट किया, तो वी गेट y प्लस सी इक्वल टू दिस, स्क्वायर कर दिया हमने बोथ साइड का, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये जगह 9/4 ये हमारा इक्वेशन ट्रेजेक्टोरी का प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ट्रेजेक्टोरी निकाल लेते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला की हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी ज्ञात करनी। पैराबोला हमारा 6ay स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल क्यूब, वेयर a इज ए वेरिएबल पैरामीटर। देखिए, तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट it with respect to x, so we get ay dy by dx is equal to 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेंज dy by dx इक्वल टू माइनस dx अपान dy। तो 12ay माइनस dx अपान dy इक्वल टू 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। किया जाएगा 3 से कट गया, 3 चक्कू 12, 4a अपान dy इज इक्वल टू जाएगा इक्वल टू x माइनस 3 बाय अपान dx।
देखिए एग्जाम्पल में हमने बताया था 6ay² इक्वल टू x माइनस 3 का होल क्यूब। इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी निकालनी है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 12ay डिवाइड बाई dx इक्वल टू 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेंज कर दिया हमने डिवाइड बाई dx को माइनस dx पर dy। तो ये इक्वेशन ये हमें प्राप्त हो गई। इस इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, चाहे तो हम इसको डिवाइड कर लें या हम चाहे तो इसको डिवाइड कर लें, चेंज वाली को। तो डिवाइडिंग 2/1 वी गेट 2/y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 3/x माइनस 3। इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया तो 2x माइनस 3 dx प्लस 3/dy इक्वल टू 0। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर मिलेगा हमें 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 3y² अपॉन 2 और इक्वल टू c/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 y² इक्वल टू c/2। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x/3 का होल स्क्वायर प्लस 3y² इक्वल टू c। ये एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। यही इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी की इक्वेशन कहलाएगी। समझ में आ गया? पहले हमने क्या किया, डिफरेंशियल किया। डिफरेंशियल करने के बाद dy बाई dx को हमने माइनस dx पर dy में चेंज कर लिया। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पहले हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग पर जो पैरामीटर a है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। उसको एलिमिनेट करने के बाद वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। उसमें हम dy बाई dx को माइनस dx अपॉन dy से चेंज करके फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन के बाद ये हमें इक्वेशन प्राप्त होती है। यही हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी की इक्वेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ कनफोकल कोनिक्स, सपोज दैट द, कह रहा है प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ कनफोकल कोनिक्स x² अपॉन a² प्लस लैम्डा प्लस y² अपॉन b² प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर। यहाँ पर लैम्डा जो है पैरामीटर है। तो कह रहा है इज सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी, ये हमारी सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी है। पहले हम समझ लेते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी क्या होती है। विच ट्रेजेक्टोरीज each other trajectory, या all the member of curve like same curve, ऐसे कर्व हमारे सेल्फ ट्रेजेक्टोरीज कहलाते हैं। सेल्फ ट्रेजेक्टोरीज जो आइडेंटिकल होते हैं हमारे ट्रेजेक्टोरी के, ऐसे कर्व जो ट्रेजेक्टोरी के आइडेंटिकल होते हैं उन्हें हम सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी कहते हैं। तो इससे सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका हमने डिफरेंशियल किया तो 2x a² प्लस y a² प्लस लैम्डा प्लस 2y डिवाइड बाई dx b² प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये प्राप्त हो। 2 हमने कैंसिल करके हटा दिया, तो x अपॉन a² प्लस लैम्डा प्लस y अपॉन b² प्लस लैम्डा डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया।
अब हम फर्स्ट और टू से जो पैरामीटर लैम्डा है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 लेंगे हम। इक्वेशन नंबर 2 से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, इसको पहले हमने चेंज किया, ट्रांसफर किया, फिर लैम्डा इक्वल टू निकाला अपना, लैम्डा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाई बाई डी एक्स अपान एक्स प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू जो है आ गई। फ्रेंड्सो जहाँ पर अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की, यानी ए स्क्वायर में हम लैम्डा जोड़ देंगे और बी स्क्वायर में भी लैम्डा जोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर में लैम्डा जब हमने जोड़ा तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, और जब बी स्क्वायर में हमने लैम्डा जोड़ा तो हमें ये वैल्यू जो है प्राप्त हो गई। इन वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा के स्थान पर। तो ये वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नया जो हमारा इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा। तो दिए गए इक्वेशंस को हमने 1 में वैल्यू पुट की, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के। इसमें से ये चीज देखें हम कॉमन है हमारा, इसको हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स यहाँ से बच जाएगा एक्स, यहाँ से बच जाएगा माइनस वाई और 1 अपान डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सो एक्स प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। ये इक्वेशन थर्ड हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन में प्राप्त हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इस पे डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रिप्लेस कर दें तो एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सेम इक्वेशन प्रकट करते हैं। सो hence given system of confocal conic is self orthogonal, इसलिए ये जो कन्फोकल कोनिक से दिया हुआ था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 एक सेल्फ ऑर्थोगोनल है, क्योंकि ये दोनों ही कर्व एक ही प्रकट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब सेम कर्व को अगर प्रकट करें तो ऐसी जो ट्रेजेक्टोरी होती हैं वो हमारी सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी कहलाती हैं।